to all of you students. Hope you all are doing great. Okay. So today I have decided to record lecture 3 of Circle chapter. Already I have uploaded Circle 1, lecture 1 and lecture 2 of Circle chapter. So today I am recording lecture 3. Students, it's a request to all of you all. Those who are coming or visiting this lecture for the first time, observing my video for the first time, do subscribe to my channel. Our channel's name is Mathamaze. Do not forget to press the bell icon so that whenever I upload all my lectures, you are immediately notified about it, right? So now, students, let us start with lecture number 3. Okay, and the sums which we are doing today are as below. So problem set 3, sum number 21. Now the question goes this way. Now figure is given to us. So let us see the figure. And what is the information in the question given? The first information which is given to us is segment MN is a chord of a circle with center O. So we have a circle whose center is O, right? The second information which is given to us is about length MN, that is length of chord MN. Now how much is chord MN given to us? It's clearly given, it is given 25 units. Further, another information given is ML. Now ML is 9 and OL is 5. So length of segment ML is given 9 units and length of segment OL is given 5 units. Understood? Now students, we have to find the radius of the circle. Now if you see the figure, in the figure, the radius is represented by segment OM. That means we have to find length of segment OM. Clear all of you? Which is nothing but the radius of the circle. Now students, if we have to think about getting the radius, the first hint which I want to give it to you all is, we should know we have a center O, right? If you see the figure, we have a center O and we have chord MN. 9th standard का concept है, याद करना. We have a center and we have a chord. तो क्या होना चाहिए? ये फट से दिमाग में आना चाहिए. Perpendicular होना चाहिए, because 9th में हमने एक theorem सीखा था. Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. मतलब अगर फिगर में सर्कल में सेंटर है और chord भी है, अगर फिगर में सर्कल में सेंटर और chord है, तो डेफिनेटली perpendicular होना ही चाहिए. So let us draw perpendicular from O on chord MN. So we are drawing segment OA perpendicular to chord MN. So that we need to mention as a construction, because वो हम अपने मर्जी से कर रहे हैं. So construction में हमने draw किया segment OA perpendicular to chord MN. Now students, we can clearly see हमने OA perpendicular draw किया है chord MN पर. तो of course वो theorem तो use होने ही वाला है. But since OA is perpendicular, we can clearly see हमें radius find करना है. So radius is OM और हमने OA perpendicular draw किया है. तो now we are getting a right angle triangle OAM. हमें OM find करना है, बराबर है, और हमने OA perpendicular draw किया है. So we are getting a right angle triangle OAM. Now students, we all know if there is a right angle triangle, there are chances that we can use Pythagoras theorem. So अगर इस right angle triangle में Pythagoras theorem use करते हैं, so equation would be, देखो 90 degrees angle A, तो angle A के सामने वाला side is OM, so OM is the hypotenuse. So equation हो जाएगा OM square is equal to OA square plus MA square, बराबर. This is the equation of Pythagoras theorem. मतलब अगर हमको OM ढूंढना है, तो we can use this equation. But we can use this equation only if we know the value of OA and we know the value of MA. तो चलो देखते हैं फिगर में और क्वेश्चन में. Do we know the value of OA? OA के बारे में कोई वैल्यू दिया है क्या, या हमें पता है क्या? नहीं, we don't know the value of OA. Let us see, do we know the value for MA? MA का वैल्यू दिया है क्या? Now here some students may say, सर हमें पता है MA का वैल्यू ढूंढ सकते हैं. ढूंढ सकते हैं वो डिफरेंट है.
आई एम आस्किंग क्वेश्चन, दिया है क्या वैल्यू एम ए का? क्वेश्चन में नो, एम ए का वैल्यू दिया नहीं है। मतलब एक चीज क्लियर हुआ, अगर हमको रेडियस फाइंड करना है तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बट ये इक्वेशन यूज करने से पहले हमें OA और MA का वैल्यू ढूंढना है। मतलब हिंट मिल गया हमको कि हमें पहले OA और MA फाइंड कर लेना है। अगर ये दोनों फाइंड कर लिया तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OM का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, हमने कंस्ट्रक्शन में क्लियरली बोला था कि सेगमेंट OA परपेंडिकुलर टू कॉर्ड MN, तो वहां से हम शुरू करते हैं। सो सेगमेंट OA परपेंडिकुलर टू कॉर्ड MN बराबर, ये हमें कैसे पता चला है? कंस्ट्रक्शन के जरिए, हमने अपने मर्जी से लिया है कंस्ट्रक्शन, बराबर ना स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने पहले भी बोला था आपको कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये सुनो, बराबर? सो सिंस सेगमेंट OA इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड MN, वी कैन से MA का वैल्यू जो है, ओके, वो हाफ होगा MA का वैल्यू, क्योंकि हमें MA ढूंढना है, बराबर है कि नहीं? सो MA का वैल्यू हाफ होगा। किसका हाफ होगा? MN का। ये कौन से थ्योरम से? बिकॉज हमें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बराबर है? सो नाउ वी कैन फ्रेम इक्वेशन, देयरफॉर MA is equal to half of MN, and reason जो सामने दिखाई दे रहा है वही रीजन, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, बराबर? Now we can substitute the values. MA पता नहीं, वही ढूंढना है, is equal to as it is half as it is MN. MN का वैल्यू देखो पता है क्वेश्चन में, MN का वैल्यू दिया है 25, so half into 25, बराबर? So now 2 1s are, now 25 को अगर 2 से डिवाइड करो, so 2 12.5 are, so MA का वैल्यू मिल जाएगा। So now we can say therefore MA is equal to 12.5 units, बराबर? So हमें किसका वैल्यू मिला? MA का। देखो हमने MA ढूंढ लिया है। So ये हमारे काम का चीज है, आगे यूज होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला ना दोनों वैल्यूज। So we'll mark this as equation number 1. Understood? Clear? Now students, further देखो, if you look at segment MA, अगर ध्यान से देखो फिगर में, अगर आप MA सेगमेंट को फिगर में देखोगे तो सेगमेंट MA जो है वो 2 पार्ट्स का बना है। सेगमेंट MA जो है वो 2 पार्ट्स का बना है। So we can say MA is equal to ML प्लस LA, और इसका रीजन होगा M डैश L डैश A। अब आप सोचोगे कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया? मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते सर आपको कैसे समझते हैं कि अभी ये स्टेप लेना चाहिए? तो देखो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी क्लियर, हमें किसका वैल्यू मिला? अभी MA का वैल्यू मिला। हमने MA का वैल्यू तो ढूंढ लिया है, बट देखो ML भी दिया है, नहीं मतलब कहीं ना कहीं तो दे वांट टू इंटेंड कि बिटवीननेस यूज करना है। सो हमने अगर बिटवीननेस यूज किया तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो MA का वैल्यू हमें पता है, अभी ढूंढा है 12.5, इक्वेशन 1 से मिला है। ML का वैल्यू दिया है 9, गिवन इंफॉर्मेशन है, प्लस LA का वैल्यू नहीं दिया है, सो इट विल बी एड। सो ये कहां से मिला? देखो 12.5 मिला इक्वेशन 1 से, और 9 कहां से मिला? गिवन से। सो इसका रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड गिवन, बराबर? नाउ स्टूडेंट्स, ये +9 अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, +9 अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया तो -9 हो जाएगा। मतलब हमको LA का वैल्यू ढूंढना है, तो +9 अगर उधर चला गया तो -9 हो जाएगा। सो देयरफॉर 12.5 - 9 इज इक्वल टू LA, बराबर? चलो 12.5 - 9, ना याद रखना 12 पॉइंट, जब भी पॉइंट आएगा तो यहां पर भी पॉइंट डालो, मतलब 12.5 तो इसको 9.0 बोलो। 12.5 - 9.0, तो कैलकुलेशन बिकम्स मच इजियर। सो 12.5 - 9.0 करो तो आंसर मिल जाएगा, देयरफॉर LA इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स। विल मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बराबर? नाउ LA क्यों ढूंढा? उसका भी कोई रीजन होगा, इट्स वेरी क्लियर एंड सिंपल।
देखो स्टूडेंट्स, हमें एमए ढूंढना था, हमने एमए तो ढूंढ लिया, अभी हमको क्या ढूंढना है, ओए, बराबर। अब ओए तो ढूंढना है, तो हमें इक्वेशन 1 में एमए का वैल्यू मिला और इक्वेशन 2 हमने मार्क किया एलए को। तो अभी देखो हमने इक्वेशन 1 और 2 अपने रेफरेंस के लिए ले लिया है, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हमें ओए ढूंढना है। नाउ इफ यू सी द फिगर, ओए belongs to right angle triangle OAL. OA belongs to right angle triangle OAL. Now in this right angle triangle OAL, हमें देखो OL का वैल्यू पता है 5 और हमने अभी अभी LA का वैल्यू ढूंढा है 3.5. तो कैन वी गेट वैल्यू ऑफ OA by using Pythagoras theorem? Perfect, right? So now we can start with triangle OAL. So देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस। तो हमको बताना पड़ेगा कि ट्रायंगल OAL में कौन सा एंगल 90 डिग्री है। सो वी नो दैट एंगल A is 90, मतलब एंगल OAL is 90 डिग्री। Why एंगल OAL is 90 डिग्री? Reason would be construction. Clear? Now here एंगल A 90 डिग्री है, तो कैन वी से OL is the hypotenuse? So we can form an equation OL square is equal to OA square plus LA square. Reason would be Pythagoras theorem, right? चलो now देखो OL का वैल्यू हमें पता है, yes OL का वैल्यू 5, so 5 square will substitute. OA का वैल्यू हमें पता है नहीं, वही ढूंढना है, so OA square as it is plus LA का वैल्यू पता है, हाँ LA का वैल्यू हमने ढूंढा है 3.5, so 3.5 the whole square. अब देखो ये 5 कहां से मिला, गिवन से, और LA का वैल्यू 3.5 कहां से मिला, इक्वेशन 2 से। तो रीजन लिखोगे फ्रॉम 2 एंड गिवन, बराबर। ना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 3.5 का स्क्वायर। ना स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी लर्न सच अ टेक्निक। अगर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जिसका एंडिंग नंबर 5 हो, आई रिपीट, ध्यान से सुनना, अगर हमें किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जिसका एंडिंग में 5 हो, जैसे कि 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड सो ऑन, हमें अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जिसके एंडिंग में 5 आता हो, तो इट्स वेरी सिंपल। देखो ये नंबर कौन सा है 35, फॉरगेट अबाउट द डेसिमल, 35। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 एंड 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, नंबरिंग सिस्टम में 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 4, तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना होता है 12 एंड 5 का स्क्वायर कितना 25, सो आंसर इज 1225। व्हाट इज आंसर 1225 एंड डेसिमल, देखो यहां पर एक डेसिमल था तो स्क्वायर में 2 डेसिमल हो जाएंगे, सो आंसर इज 12.25, बराबर, राइट। सो नाउ लेट्स सी 5 का स्क्वायर कितना 25 एंड 3.5 का स्क्वायर कितना 12.25, सो वी कैन से देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, अब ये देखो ये प्लस 3.5 होल स्क्वायर था, ये 3.5 का स्क्वायर प्लस है, उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 12.25। I hope all of you have understood how did we do this calculation. वापस एक बार बता दो, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये 25 आ गया एंड 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 के बाद आता है 4, सो 3 into 4 is 12, so 12.25 is the answer. So now what we can do is subtract करो। now यहाँ पर subtraction करते हो ध्यान देना, ये देखो ये 2 डेसिमल है तो इधर भी 2 डेसिमल होने चाहिए, मतलब 25.00 25.00 माइनस 12.25, ऐसे सब्ट्रैक्शन करना, 25.00 minus 12.25. If you subtract 25 minus 12.25, you will get the answer OA square is equal to 12.75. I hope all of you have understood. Now students, I want you to remember one very important thing now. Very important thing. अब नॉर्मली आदत से मजबूर हम क्या करते हैं, OA स्क्वायर का वैल्यू मिला 12.75, हमें ढूंढना क्या है OA,
So we start taking the square root of 12.75 क्योंकि हमें OA ढूंढना है. So we start taking the square root of 12.75. Don't do that mistake. Because 12.75 का स्क्वायर रूट ढूंढना उतना इजी नहीं है, थोड़ा तकलीफ है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमें OA ढूंढना ही नहीं है. OA स्क्वायर से अपना काम बनता है. So keep OA square as it is. So we'll mark this as equation number 3. और इसको हाईलाइट किया ताकि ये याद रहे कि OA का मतलब OA स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने का जरूरत नहीं है. Do not take the square root and find OA. यहां पर आप बोलेंगे कि ये सब बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो रहा है. So do not take the square root, keep OA square as it is. Is it very clear to all of you? So now students, याद है ना हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड इफ यू रिमेंबर, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था? हमने ट्राइंगल OAM लिया था. कौन सा? OAM. अगर आप ये ट्राइंगल देखो OAM, इसमें एंगल OAM 90 डिग्री है. क्यों एंगल OAM 90 डिग्री है? वी ऑल नो द रीजन, कंस्ट्रक्शन. बराबर. चलो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम? परफेक्ट. देखो एंगल A 90 डिग्री है एंड OM इज द हाइपोटेनस. So we can say OM square is equal to OA square plus MA square, and the reason would be yes, by Pythagoras theorem. Now we can substitute the values. देखो OM का वैल्यू हमें पता नहीं है, right? OM का वैल्यू हमें पता नहीं है, so OM square will remain as it is. बराबर. Now OA का वैल्यू हमें पता है नहीं, बट OA स्क्वायर का वैल्यू पता है और हमें स्क्वायर ही चाहिए. इक्वेशन 3 में याद है ना, मैंने बताया था हमें स्क्वायर रूट ढूंढने का जरूरत नहीं, OA का वैल्यू नहीं चाहिए, OA स्क्वायर काफी है. सो OA स्क्वायर का वैल्यू, इफ यू रिमेंबर, इट इज इक्वेशन नंबर 3. सामने देखो 12.75. सो 12.75 एज इट इज. नाउ यहाँ पर एक ध्यान देना, क्योंकि आदत से मजबूर OA स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर करते हैं. डू नॉट डू दैट. OA स्क्वायर का ही वैल्यू 12.75, तो अलग से और स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है. प्लस MA. ना MA का वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में 12.5 है, तो ये MA स्क्वायर है, तो 12.5 द होल स्क्वायर कर सकते हैं. तो ये दोनों वैल्यू कहां से मिला? OA स्क्वायर का वैल्यू मिला इक्वेशन 3 से और MA का वैल्यू मिला 12.5 इक्वेशन 1 से. सो रीजन वुड बी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 1. Now we can solve it further. OM square is equal to 12.75 plus 12.5 the whole square. वापस देखो एंडिंग का नंबर क्या है? 5. एंडिंग का नंबर क्या है? 5. तो इसका स्क्वायर करना है. तो टेल मी 12 के बाद का नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है नंबरिंग सिस्टम में? 12 के बाद आता है 13. सो मल्टीप्लाई 12 इंटू 13. मल्टीप्लाई 12 इंटू 13. If you multiply 12 into 13, you get the answer 156. 12 into 13 is 156. And 5 का square 25. And since there is one decimal, square में 2 decimal हो जाएगा. So answer is 156.25. I hope you have understood the direct calculation. देखो एंडिंग का नंबर 5 है और उसका स्क्वायर ढूंढना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. ये लिख लिया. एंड 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? 12 के बाद नंबरिंग सिस्टम में आता है 13. सो 12 into 13 is 156. So 156.25. चलो now add both. OM square is equal to, if you add a 12.75 plus 156.25, you get the answer 169. Total किया, total is 169. So we have got the answer of OM square is 169. Now 169 is a perfect square. So we can easily take the square root. So OM is equal to 13 units. So 169 का square root is 13. So हमने क्या किया यहाँ पर? We have taken the square root. So reason will be taking square roots. Now tell me students, what is OM representing in the figure? OM represents the radius of the circle. और हमें find क्या करना था? Radius of the circle. So हमने radius of the circle find कर लिया. So we can say therefore the radius of the circle is 13 units. Did you understand this? A very important sum, but very simple sum for 3 marks.
I hope all of you have understood some. Fine. Now let us see the next sum. Okay, rather it's a theorem. Now we don't have to prove the theorem. We have to just understand this theorem and later on we'll prove this theorem. Okay, a very simple, okay, but very important. Now यहाँ पर जो theorem अभी करने वाले हैं, तो it depends, मतलब स्कूल में पूछा तो ही करना, otherwise they will not ask you to prove this theorem. Okay. Exactly, if you read the statement, you'll come to know this theorem is the converse of the first theorem which we did, that is tangent theorem. The first theorem हमने जो किया है वो कौन सा था? Tangent theorem था. अब इस tangent theorem का ये converse है, कहीं पर लिखा नहीं है, बट ये पता है. अब क्या है देखो स्टेटमेंट, a line perpendicular to the radius at its outer end is a tangent to the circle. मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए? सर्कल. So let us have a circle. So we are drawing a circle. इसका center है P. Okay. Then next अगर आप देखो तो हमें पता चलता है फिगर में कि रेडियस होना चाहिए. तो let us draw रेडियस. तो रेडियस किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं. P से एक सेगमेंट ड्रॉ करो, हमें रेडियस मिल गया. तो रेडियस इज PA. बराबर. Now what does the theorem say? स्टेटमेंट देखो, a line perpendicular to the radius at its outer end. वैसे देखा तो वैसे लाइन बहुत सारे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस पर, बट उन्होंने रेडियस पर नहीं बोला है. कहां पर बोला है? रेडियस के आउटर एंड पर. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हिच इज द आउटर एंड ऑफ द रेडियस? यस, आउटर एंड ऑफ द रेडियस इज पॉइंट ए. तो हमें परपेंडिकुलर कहां पर ड्रॉ करना है? पॉइंट ए पर ड्रॉ करना है. मतलब एक लाइन जो ए से पास होगा और रेडियस को परपेंडिकुलर होगा. बराबर है. सो विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ए. बराबर. सो लाइन एल हमने ड्रॉ किया जो ए से पास हो रहा है, बट वो कैसे भी ड्रॉ नहीं करना है. इट हैज टू बी परपेंडिकुलर. किसको परपेंडिकुलर? रेडियस को. सो यहां पर 90 डिग्री का साइन होना जरूरी है. राइट. अभी व्हाट डज द थ्योरम से? ध्यान से सुनना. द थ्योरम सेज दैट अगर कोई लाइन रेडियस को उसके आउटर एंड पर परपेंडिकुलर होगी, अगर कोई लाइन रेडियस को उसके आउटर एंड पर परपेंडिकुलर होगी, तो वो लाइन टेंजेंट हो सकती है. मतलब उस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट बोल सकते हैं. राइट. सो यहां पर हमें इतना ही पता है कि ये लाइन है और ये लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है उसके आउटर एंड पर, ये पता है हमको. मतलब कोई लाइन अगर रेडियस को उसके आउटर एंड पर परपेंडिकुलर होगी तो उस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? टेंजेंट बोल सकते हैं. राइट. तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PA एट पॉइंट A. लाइन L इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PA. अगर लाइन L सेगमेंट PA को परपेंडिकुलर है, मतलब PA रेडियस है, तो लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है उसके आउटर एंड पर, तो उस लाइन के बारे में हम बोल सकते हैं कि लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. ओके. सो ये लाइन जो है उसको टेंजेंट बोल सकते हैं. सो देखो, व्हाई डिड आई से दिस थ्योरम इज कॉन्वर्स? टेंजेंट थ्योरम में क्या है? टेंजेंट थ्योरम में हमें पता है कि देयर इज अ रेडियस एंड देयर इज अ टेंजेंट. टेंजेंट थ्योरम में हमें पता है कि देयर इज अ रेडियस, देयर इज अ टेंजेंट, और उस थ्योरम के जरिए हम प्रूव करते हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. मतलब उस थ्योरम के जरिए हम परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं. बट इस थ्योरम में देखो परपेंडिकुलर गिवन है, रेडियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और एक लाइन गिवन है. हमें इस थ्योरम के जरिए क्या पता चलता है कि जो लाइन रेडियस को उसके आउटर एंड पर परपेंडिकुलर है तो वो लाइन टेंजेंट है. तो इस थ्योरम के जरिए हम उस लाइन को टेंजेंट प्रूव करते हैं. राइट. अब ये थ्योरम हम यूज कब करते हैं? देखो कभी ऐसे सम्स आ सकते हैं आपको कि प्रूव दैट दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. याद रखना, अगर किसी लाइन को टेंजेंट प्रूव करना है तो उस लाइन को रेडियस को परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर वो लाइन रेडियस को उसके आउटर एंड पर परपेंडिकुलर है तो हम उस लाइन को टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम के जरिए. अंडरस्टूड दिस? राइट.
So now we don't have any sum based on this theorem in a syllabus, but definitely we have a solved example. So we are doing that solved because there is only one example which is based on this theorem. That's why we have taken this solved example, right? So now students, we have this sum in front of us. सबसे पहले tangents to the circle with center O. So let us have a circle with center O. Further information, tangents कहां पर है? At points A and B. So let us take point A, let us take point B. अब इन दोनों points पर tangents draw करते हैं. And they both intersected P, ऐसे बोला है, बराबर? तो हमने P point ले लिया है, intersection point. Further, a circle is drawn with center P passing through A. अब ये ध्यान से, मतलब अगर आपको फिगर ड्रॉ करना है तो ध्यान देना. अभी सेंटर क्या लेना है? पॉइंट P. सेंटर क्या लेना है? पॉइंट P. एंड एक सर्कल बनाना है जो A से पास होगा. देखो, सर्कल ड्रॉ करने के लिए दो चीजें चाहिए, सेंटर एंड रेडियस. सर्कल ड्रॉ करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक सेंटर एंड दूसरा रेडियस. तो यहां पर उन्होंने बोला है सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर P पासिंग थ्रू A, मतलब वो सर्कल A से पास होगा. सर्कल A से पास होगा मतलब रेडियस हमको लेना है PA. रेडियस क्या लेना है? PA. अगर PA रेडियस लोगे तो एक सर्कल बना सकते हैं. So keeping P as the center and radius PA, we have to draw a circle. So students, it's a request to all of you to practice this figure. एग्जाम में फिगर दिया होगा नहीं दिया होगा, we don't know. We have to draw this figure. So it is very important that you should be able to draw this figure. So ये एक फिगर ध्यान से प्रैक्टिस करना. Okay. So taking P as the center and PA as the radius, we are drawing a circle with center P. बराबर? Now what does the question is asking? Question is saying prove that the tangent at A to the circle with center P, मतलब ये जो सर्कल है ना, सर्कल विद सेंटर P, मतलब ये सर्कल. अब इस सर्कल पर एक टेंजेंट है जो A से पास हो रहा है. सो टेंजेंट एट A टू द सर्कल विद सेंटर P पासेस थ्रू O, मतलब A से पास होने वाला अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, A से पास होने वाला अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट आगे चल के O से ही पास होगा, ये प्रूव करना है. Okay. Now understand this theorem or this sum rather. Okay. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि ये लाइन टेंजेंट है. क्या बताया गया है? कि ये लाइन टेंजेंट है. और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट O से ही पास होता है. हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट O से ही पास होता है. तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पूछा ना कि प्रूव करो कि ये O से पास होता है, दिस टाइप ऑफ प्रूविंग इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रूविंग. कंस्ट्रक्टिव मतलब ड्रॉ करके बताओ कि ये O से पास होता है, ऐसा ड्रॉ करके बताओ. बट हियर वी आर नॉट डूइंग अ कंस्ट्रक्टिव प्रूफ, हमें एक्चुअली सॉल्व करके बताना है. सो स्लाइटली हम थोड़ा सा चेंज करेंगे पैटर्न. तो ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं. देखो, हमें पता है कि ये लाइन टेंजेंट है और हमें प्रूव करना है कि ये O से पास होता है, तो हम इसको थोड़ा उल्टा करेंगे. हम इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे, इसको एक लाइन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इसको एक लाइन. और ये लाइन O से पास हो रहा है. देखो, टेंजेंट O से पास हो रहा है, इसमें दिक्कत है बिकॉज वो तो प्रूव करना है. तो टेंजेंट O से पास होता है ये हम नहीं बोल सकते, बट हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन O से पास हो रहा है. टेंजेंट नहीं, ये लाइन है और ये लाइन O से पास हो रहा है. बराबर. तो हम इस लाइन को ये बोलेंगे कि ये लाइन O से पास हो रहा है और इस लाइन को हम टेंजेंट प्रूव करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? ये टेंजेंट है और पूछा क्या है कि ये टेंजेंट O से पास होता है, ये प्रूव करके बताओ. तो मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है जो ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि देखो ये O से पास हो रहा है. बट ऐसा तो प्रूफ नहीं करना है हमको तो सॉल्व करके बताना है. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं. अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या? देखो, क्वेश्चन को चेंज करना मतलब वी आर नॉट एक्चुअली चेंजिंग द होल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, वी आर चेंजिंग द कंसेप्ट.
बट द इंटेंशन रिमेन्स द सेम। मतलब क्या, देखो हम इसको टेंजेंट नहीं बोल रहे, हम इसको क्या बोल रहे हैं, लाइन। इसको क्या बोल रहे हैं, लाइन। और ये लाइन ओ से पास हो रहा है, बोल रहे हैं कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओ। टेंजेंट नहीं बोल रहे, याद रखना। इसको क्या बोल रहे हैं, लाइन जो ओ से पास हो रहा है। और इस लाइन को हम प्रूव करेंगे कि ये लाइन टेंजेंट है। देखो सबसे पहले तो लाइन ओ से पास हो रहा है और हम प्रूव क्या कर रहे हैं, ये लाइन टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट इज पासिंग थ्रू ओ। हो गया, सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड इट? पक्का? फाइन। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर वी डूइंग दिस। सबसे पहले विल कंसीडर सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, ये छोटा सर्कल जो है ना उसको कंसीडर करेंगे। फॉर दिस सर्कल क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखो ये छोटे सर्कल के लिए, इस छोटे सर्कल के लिए हमें पता है कि ये लाइन एपी टेंजेंट है, बराबर है। हमें क्या पता है, लाइन एपी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। नाउ दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, बराबर है, बराबर। सो लाइन एपी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये लाइन टेंजेंट है। हम इसका बात नहीं कर रहे, ये लाइन ओ ए का, हम इसका बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है देखो, टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्टेड पी। तो दिस लाइन इज अ टेंजेंट which is given to us. And what do we know about segment OA? सेगमेंट OA रेडियस है, सेगमेंट OA इस सर्कल के लिए रेडियस है। सो सेगमेंट OA रेडियस है और लाइन AP टेंजेंट है। सो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट थ्योरम पता है कि नहीं, कि जहां पर भी रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। So we can say therefore measure angle OAP is equal to 90 degree. Equation number 1, and the reason would be tangent theorem, right? पक्का समझा? So now we know that for circle with center O, segment OA radius है, line AP tangent है, therefore angle OAP 90 degree है by tangent theorem. Now we'll consider this circle with center P. ये बड़ा सर्कल कंसिडर करेंगे। Now इस सर्कल के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। ओके, ध्यान से देखना। इस सर्कल में देखो, अभी ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, ये 90 डिग्री है। अच्छा, इसको हमने क्या अज्यूम किया है, लाइन बोला है। सो ये लाइन OA है, लाइन OA। एंड इस सर्कल के लिए सेगमेंट PA रेडियस है, ये सेगमेंट PA रेडियस है और ये लाइन OA है और ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। मतलब we can say for this circle line OA is perpendicular to segment AP. Line OA is perpendicular to segment AP. तो ये परपेंडिकुलर कहां से पता चला, यहां से इक्वेशन 1 से 90 डिग्री एंगल बना है, मतलब परपेंडिकुलर है। सो लाइन OA is perpendicular to segment AP कहां से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या बोला है, लाइन OA, टेंजेंट नहीं बोला है, क्या बोला है इसको, लाइन। और ये लाइन परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, रेडियस AP को। अच्छा, रेडियस AP का आउटर एंड क्या है, आउटर एंड A है। तो वी हैव लर्न द थ्योरम, अगर कोई लाइन रेडियस को उसके आउटर एंड पर परपेंडिकुलर होगी तो उस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट बोल सकते हैं। तो इज लाइन OA परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स आउटर एंड? यस, रेडियस AP का आउटर एंड A है और वहां पर ये एंगल 90 डिग्री है। सो लाइन OA के बारे में बोल सकते हैं, लाइन OA इज अ टेंजेंट एट पॉइंट A, बिकॉज लाइन रेडियस को उसके आउटर एंड पर परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो लाइन टेंजेंट है, राइट। तो इसका कुछ रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन क्या होगा, द थ्योरम। व्हाट वाज द थ्योरम, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स आउटर एंड इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। यहां पर कुछ बच्चे बोलते हैं सर कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम लिखा तो चलेगा क्या? नो, डोंट डू दैट, बिकॉज टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये कॉन्वर्स है करके। इवन दो द आइडिया रिमेन्स द सेम, इट्स अ कॉन्वर्स, बट ऐसा बोला नहीं है। सो डू नॉट मेंशन दैट इट इज कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। पूरा एक स्टेटमेंट लिख दो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स आउटर एंड इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, सो फाइनली देखो अभी कंसेप्ट क्या है, लाइन OA को टेंजेंट प्रूव किया। किसको टेंजेंट प्रूव किया, लाइन OA को। तो टेंजेंट का नाम क्या हुआ, लाइन OA। टेंजेंट का नाम क्या हुआ, लाइन OA। देखो टेंजेंट के नाम में ही O आता है,
जब टेंजेंट के नाम में ही ओ आता है तो वी कैन से टेंजेंट इज पासिंग थ्रू ओ। सो डेफिनेटली लास्ट का वर्डिंग हमने प्रूव किया। सो हम बोल सकते हैं टेंजेंट एट ए टू द सर्कल विथ सेंटर पी passes through O. Did you understand this? Now this was a very important sum for 3 marks. Okay, this sum will come for 3 marks. A very important and only sum based on this theorem. A line perpendicular to the radius at its outer end is a tangent to the circle. Okay, done. That's why we have taken this solved example, because this is the only sum in the entire chapter which is based on this theorem. Right? Now, the next theorem which we are going to do is a very important and the first type of theorem which will be proving it actually. Okay, तो फिलहाल के लिए तो हम सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे, बट आज ही के लेक्चर में हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं। Now let us see what does the theorem say. सबसे पहले, okay, I'm so sorry. The statement says the length of two tangent segments drawn from an external point to a circle are equal. तो सबसे पहले हमें पता है कि कुछ भी नहीं समझा तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करो। So given में हमें इतना तो पता है कि there is a circle with center O, सबसे पहला इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट देखो, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट का बात हुआ है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या? सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, बराबर। सर्कल के बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट है, तो वी आर टेकिंग पॉइंट P आउटसाइड हियर। सो इस P के बारे में हमको इंफॉर्मेशन में बताना पड़ेगा कि P इज अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। What can we say about P? P is a point which is in the exterior of the circle, बराबर। आगे क्या बोला दे? Tangent segments drawn from an external point to a circle, मतलब ये जो external point है ना, वहां से कितने tangent segments ड्रॉ करने हैं? 2। तो सर्कल पर इस external point से 2 tangents ड्रॉ करने हमको। तो ये रहा एक tangent PA और दूसरा P से PB tangent। तो थर्ड इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि PA and PB are the tangents from P। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, गिवन इंफॉर्मेशन है कि सर्कल दिखाई दे रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिखाई दे रहा है और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डज द थ्योरम से? थ्योरम सेज दैट अगर आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि इन दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन, लाइन का लेंथ नहीं होता है। बट उन्होंने टेंजेंट के बारे में नहीं बोला, उन्होंने टेंजेंट सेगमेंट्स के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला? टेंजेंट सेगमेंट्स। तो इन्होंने थ्योरम में ये बोला है कि अगर सर्कल दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट दिखाई दे रहा है और 2 टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं सर्कल पर, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। ओके, सो P से PA and P से PB इन दोनों का लेंथ इक्वल है। But students, if you remember in the first lecture, I have said it to you all. For a tangent segment, one of the endpoints has to be the point of contact. बहुत इंपॉर्टेंट है। जब tangent segment की बात होती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि tangent segment मतलब एक ऐसा segment जिसका एक एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, जिसका एक एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। मतलब टेंजेंट सेगमेंट का सेगमेंट आप शुरू कहीं से भी करो, कहीं से भी शुरू करो, बट खत्म कहां पर होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर खत्म होना चाहिए। अंडरस्टूड दिस? क्लियर ऑल ऑफ यू? पक्का? सो यहां पर हम प्रूफ क्या करना है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है इस थ्योरम का? PA इज इक्वल टू PB। सो देखो, A के आगे जाना नहीं है, बिकॉज A तक टेंजेंट सेगमेंट है, तो PA इज अ टेंजेंट सेगमेंट, PB इज अ टेंजेंट सेगमेंट। सो प्रूव करना है कि PA PB को इक्वल है, मतलब ये उसका आउटपुट है थ्योरम। तो henceforth you have to remember that whenever there is an external point and if 2 tangents are drawn to the circle, we can always say the length of 2 tangent segments are always equal by this theorem. Okay? And ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट का हम एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो, पहला थ्योरम कौन सा? टेंजेंट थ्योरम, कि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर है। ये कौन सा थ्योरम है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। मतलब द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, सो नाउ लेट अस सी
द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्योरम, रियली आपको थ्योरम समझा है कि नहीं. इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, whenever a circle is inscribed in a triangle or if a circle is inscribed in a quadrilateral, मतलब अगर सर्कल इंस्क्राइब्ड मतलब समझते ना, इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा है, या सर्कल क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्राइब्ड. देखो ये एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है, बट अंदर का मतलब कैसे कि सर्कल तीनों साइड्स को टच कर रहा है. तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्कल अगर तीनों साइड्स को टच करे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P is the point of contact, R is the point of contact and Q is the point of contact. Q याद रखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट अब क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर. चलो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, नेम द टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए. तो एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट सेगमेंट्स का नाम देना है. स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, टेंजेंट सेगमेंट की जब बात करते हैं ना, टेंजेंट सेगमेंट की, तो टेंजेंट सेगमेंट शुरू कहीं से भी होगा बट खत्म कहां पर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर. उसके आगे नहीं जाना है, उसके आगे गए तो उसको टेंजेंट सेगमेंट नहीं बोल सकते. तो देखो अगर आपने ए से शुरू किया तो ए से ए पी इधर तक ही बोलना है, बिकॉज पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर ए से शुरू किया तो आर तक ही बोलना है, बिकॉज आर इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. So if I ask name the tangent segments from external point A, we can say AP and AR. और हमें पता है कि tangent segments का length equal होता है if they are drawn from an external point to a circle. So AP is equal to AR. बराबर. चलो name the tangent segments from external point B. तो बताओ B से कौन से दो tangent segments नाम दे सकते हैं? Yes, B से बोल सकते हैं BP and BQ. And we can say that the lengths are equal. So BP is equal to BQ. Now name the tangent segments from an external point C. C से कौन से दो tangent segments? Yes, CQ and CR. And we can say their lengths are equal. CQ is equal to CR. So we can clearly say AP AR को equal है, BP BQ को equal है, and CQ CR को equal है. इसका reason tangent segments theorem. Okay? अंडरस्टूड, तीनों का सेम ही रीजन होगा, टेंजेंट सेगमेंट्स थ्योरम. सो प्लीज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं. इफ आई आस्क टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम ए, बच्चे बोलते हैं ए बी एंड ए सी. ए बी एंड ए सी विल बी रॉन्ग. आपको याद दूं वापस एक बार, टेंजेंट सेगमेंट शुरू कहीं से भी हो, खत्म कहां पर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर. एक एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, एक एंड पॉइंट, बराबर है. तो याद रखना ये एक एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए. अगर आपने ए बी टेंजेंट सेगमेंट बोला ए बी, तो ना बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. सो ए बी कैन नॉट बी टेंजेंट सेगमेंट. वैसे ही ए सी कैन नॉट बी टेंजेंट सेगमेंट. टेंजेंट सेगमेंट होने के लिए एक एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए. क्लियर कंसेप्ट? डन, फाइन. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. एज आई हैव सेड, देखो सर्कल किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, क्वाड्रिलैटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है. Since the circle is inscribed in the quadrilateral, we can again say we can use tangent segment theorem. So now tell me students, name the tangent segments from external point P here. Tangent segments, so we can say PA and PD. So we can say PA is equal to PD, we all know. Chalo, name the tangent segments from external point Q. From external point Q से बोल सकते हैं QA and QB. So we can say QA is equal to QB. So now tell me, name the tangent segments from an external point R. Yes, R से दो tangent segments कौन से हैं? RC and RB. या RB and RC. तो can we say RB is equal to RC? Next, name the tangent segments from an external point S. S से कौन से बोल सकते हो? Yes, SC and SD. तो वो दोनों इक्वल है. So henceforth we have understood that whenever a circle is inscribed in a triangle or inscribed in a quadrilateral, we can use tangent segment theorem, right? So ये चारों segments का pair इक्वल है, इसका रीजन होगा tangent segments theorem.
Understood? Right? Now, let us see how can we implement this concept or this theorem in various sums. Okay? But उससे भी पहले let us see the theorem. मतलब ये theorem actually prove करते हैं. मैंने तो आपको बताया था ये theorem आज के लेक्चर में हम प्रूव करने वाले हैं. तो हमने कंसेप्ट को तो समझ लिया, अब एग्जैक्टली थ्योरम प्रूव करना है. नाउ दिस इज अ थ्योरम व्हिच कम्स फॉर 3 और 4 मार्क्स. आपको ये पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व करना है. बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजी थ्योरम्स टू सॉल्व. मतलब हमेशा प्रे करो कि ये ऐसे थ्योरम एग्जाम्स में आनी चाहिए. बहुत सिंपल थ्योरम है. ओके, स्टेटमेंट आपको पता है, गिवन भी आपको पता है. सबसे पहले एक सर्कल होना चाहिए, तो वी आर ड्राइंग अ सर्कल. तो फर्स्ट गिवन क्या लिखोगे? अ सर्कल विद सेंटर हो. जो पहले बोला तो वही सब. फिर आपको पता है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P लेंगे. सो P इज अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सेकंड गिवन. एंड थर्ड, हमको दो टैंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं. कितने? दो एक्सटर्नल पॉइंट से. तो P से PA एंड P से PB. सो वी से PA एंड PB आर द टैंजेंट्स टू द सर्कल. बराबर? दिस इज अवर थर्ड गिवन. राइट? ये दोनों टैंजेंट्स, मतलब यहां पर सिंस लाइन ड्रॉ किया इसलिए टैंजेंट बोला है. पूरा टैंजेंट ड्रॉ किया ना, देखो एरो मार्किंग दिख रहा है, पूरा टैंजेंट ड्रॉ किया. बट लेंथ किसका इक्वल है? टैंजेंट सेगमेंट्स का. सो हमने गिवन में क्या बोला है? PA एंड PB आर द टैंजेंट्स फ्रॉम P. अब हमें प्रूव क्या करना है? सबको पता है कि प्रूव करो कि टैंजेंट सेगमेंट्स का लेंथ इक्वल है, मतलब PA इज इक्वल टू PB. बराबर? नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विच नॉलेज यू शुड हैव. नाउ सबसे पहले हमें पता है कि देयर इज अ सेंटर O. दिखाई दे रहा है सबको सेंटर O. एंड ये लाइन PA क्या है? टैंजेंट. ये लाइन PB क्या है? टैंजेंट. सो व्हेनेवर वी सी अ सेंटर एंड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, A is the point of contact, B is the point of contact. So whenever we see a center and a point of contact, there should be a radius. पता है ना सबको? अगर सेंटर दिखा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिखा है, तो क्या होना चाहिए? रेडियस होना ही चाहिए. सो लेट अस ड्रॉ रेडियस. अब ये रेडियस हम अपने मर्जी से ड्रॉ करने वाले, फिगर में नहीं दिया है. तो अगर कोई हम चीज अपन मर्जी से करते हैं तो दैट इज कंस्ट्रक्शन. यहां पर हमको कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OB. तो हम कंस्ट्रक्शन में इसको मेंशन करेंगे कि हमने OA ड्रॉ किया, OB ड्रॉ किया. बराबर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमने अपने मर्जी से किया है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में डाल दिया. नाउ स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है? देखो, हमें प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PB. सो नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. PA इज अ साइड एंड PB इज अ साइड. हमें दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है. सो फॉर प्रूविंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. वी नो दिस बेसिक. अगर हमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो. अगर हमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो. ये तो बेसिक है जो 9 से सीखते आ रहे. सो अगर हमें PA एंड PB ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो PA शुड बिलोंग टू वन ट्रायंगल एंड PB शुड बिलोंग टू अनदर ट्रायंगल. तो दो ट्रायंगल्स होने के लिए वी हैव टू ड्रॉ समथिंग. ओके, बिकॉज कैन वी सी टू ट्रायंगल्स? अभी दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं क्या? नो, वी कैन नॉट सी टू ट्रायंगल्स. सो टू सी टू ट्रायंगल्स, और दो ट्रायंगल्स दिखने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा. सो कैसे क्रिएट करेंगे? बाय ड्रॉइंग OP. बराबर? सो हमने OP कंस्ट्रक्शन में भी ले लिया. देखो इधर ड्रॉ सेगमेंट OP एज वेल. क्लियर? तो अभी हमने OA ड्रॉ किया, OB ड्रॉ किया, OP ड्रॉ किया. बराबर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. नाउ आपको पता है कि PA और PB इक्वल होने के लिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. तो पहला ट्रायंगल कौन सा है? PAO एंड दूसरा ट्रायंगल PBO. सो विल स्टार्ट विद द प्रूफ. इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO. अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है. सबसे पहले तो एंगल A को देखो इधर और एंगल B को. सो ऑब्जर्व एंगल OAP एंड एंगल OBP. इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व करो. अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक थ्योरम का कंसेप्ट याद आएगा. पहला थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम. देखो OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, OA रेडियस है, PA टेंजेंट है. वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. बराबर है कि नहीं? सो ऑन दिस कंसेप्ट वी से दैट एंगल OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree. बराबर?
सो एंगल ए का वैल्यू 90 होगा, एंगल बी का वैल्यू भी 90 होगा. सो हियर वी कैन से मेजर एंगल PAO is equal to measure angle PBO is equal to 90 degree. And इसका रीजन why the angles are 90 degree, tangent theorem. बराबर. Now students, we have studied various tests of proving triangles congruent in 9th standard. Triangles congruent होने के लिए various tests है. उसमें सबसे important हमने सीखा है कि अगर दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो ज्यादातर हाइपोटेनस साइड टेस्ट हो सकता है. ज्यादातर अगर दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स है तो ये दोनों तो राइट एंगल ट्रायंगल्स है बिकॉज एंगल्स 90 डिग्री है. अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में चेक करो कि उनके हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है क्या. दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है क्या चेक करो. सो एंगल है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस OP और इधर एंगल B 90 डिग्री, B के सामने वाला हाइपोटेनस इज OP. सो दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस इज द कॉमन साइड. सो हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज इट्स अ कॉमन साइड. So we can say hypotenuse OP congruent to hypotenuse OP reason common side, right? चलो hypotenuse congruent है. hypotenuse side test होता है तो side का एक जोड़ी congruent होना चाहिए. So tell me students, now do we have one more pair of sides congruent? Side का और एक जोड़ी congruent दिखाई दे रहा है किधर भी? Yes, we can clearly see. कौन से दोनों? OA and OB are equal. Why OA and OB are equal? Radii of the same circle. So we say segment OA congruent to segment OB, radii of the same circle. So देखो दो ट्राइंगल्स में उनके हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है और उनके साइड का एक एक जोड़ी कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर दो ट्राइंगल के हाइपोटेनस और साइड का एक जोड़ी कॉन्ग्रुएंट है तो वी से द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट. सो ट्राइंगल PAO congruent to triangle PBO by hypotenuse side test बोलो या hypotenuse side theorem बोलो. Understood? पक्का? Now the two triangles are congruent. Now students, we always know हम दो triangles congruent क्यों प्रूव करते हैं? ताकि उनके बाकी बचे sides और बाकी बचे angles को congruent बोला जा सके. यहाँ पर आपको पता है हमें क्या प्रूव करना है कि PA PB को इक्वल है. PA is the side of first triangle and PB is the side of second triangle. अगर ये दोनों triangles congruent है so we can always say segment PA congruent to segment PB and the reason would be CSCT, corresponding sides of congruent triangles. ये CSCT लिख सकते हैं allowed. Is it clear? If the segments are congruent, can we say the lengths are equal? So we can say therefore PA is equal to PB. Segments congruent है तो उनका length equal है and hence we have proved that PA and PB both are equal. तो हो गया proof. This theorem can come for 3 marks or for 4 marks. So students, as I said, pray that ये theorem exam में आना ही चाहिए. बहुत simple theorem. वैसे तो कुछ भी आ सकते हैं. And believe me, other theorems are also very very simple. Okay? बहुत simple. ये chapter की theorems तो बहुत simple है. Right? Fine. So we have understood this theorem. इसी theorem पर based एक solved example है. वैसे तो बहुत सारे examples है, but एक solved example ये बहुत important है. इसलिए हम सोचते हैं कि लेना चाहिए. Now first question, अब देखो ये solved example का question. 4 tangents to a circle at points A, B, C and D. तो let us have a figure in front of us. Okay? So यहाँ पर 4 tangents है. ये tangents कहाँ से पास हो रहे हैं? Points A, B, C and D से पास हो रहे हैं. तो पहला tangent circle को A से, ये circle है. दूसरा tangent B से, तीसरा tangent C से and चौथा tangent D से. तो ये रहा PS is a tangent at point A. PQ is a tangent at point B, QR is a tangent at point C, and SR is a tangent at point D. Barabar? Now, further what they are saying about these 4 tangents. These 4 tangents form a parallelogram PQRS. ये चारों tangents मिलके एक quadrilateral बना रहे हैं और वो quadrilateral कौन सा है? Parallelogram. Right? So we are getting a parallelogram PQRS. तो याद रखना parallelogram के properties. Further, what is the information given? PB का value दिया है 5. So PB का value we know 5. Second, BQ का value दिया है 3. That is one more information. So we know BQ का value is 3. So BQ का value भी हमने 3 लिख लिया. हमें find क्या करना है? हमें find करना है PS. बराबर? So students,
वी नो हमें फाइंड क्या करना है, द एंटायर पीएस, ये सेगमेंट जो है वो हमें फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट पीएस सेगमेंट इन द फिगर, मतलब पी से अगर एस तक जाते हैं पूरा ध्यान लगाकर, पी से लेकर एस तक जब ध्यान दे रहे हैं तो पता चलता है कि बीच में एक पॉइंट ए आ रहा है, मतलब इट इज क्लियरली सीन दैट पीएस इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स। So tell me which two segments? Yes, we can clearly see PS is made up of two segments, PA and AS. बराबर, मतलब हिंट एकदम क्लियर है कि अगर हमको PS ढूंढना है तो पहले PA ढूंढो और फिर AS ढूंढो। अगर ये दोनों ढूंढ लिया तो अपना काम हो गया। बराबर, तो पहले क्या ढूंढना है, PA और दूसरा AS। मतलब ऑर्डर में पहले AS ढूंढो बाद में PA ढूंढो, इट्स ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। अभी अगर आप फिगर देखो, एंड अभी मैंने कुछ थ्योरम सीखा है तो उसमें कंसेप्ट बोला था कि देखो सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलैटरल, ये सर्कल क्वाड्रिलैटरल में इंस्क्राइब्ड है तो डेफिनेटली टैंजेंट सेगमेंट्स थ्योरम हो सकता है। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट P फर्स्ट। नाउ इफ यू कंसीडर पॉइंट P, टेल मी स्टूडेंट्स, what can you say about PA and PB? PA and PB के बारे में क्या बोल सकते हैं? Yes, we all know that they are equal. बराबर है कि नहीं? They are the tangent segments to the circle PA PB. दोनों tangent segments है, याद है tangent segment. So since they are tangent segments to the circle, वो दोनों equal बोल सकते हैं। क्यों equal बोल सकते हैं? Because we know that the length of two tangent segments drawn from an external point to circle are equal. ये हमें पता है। So since PA and PB are equal, PA का value 5 होगा because they are equal. So that we have to write it down first in the solution. सबसे पहला स्टेप लिखेंगे PA is equal to PB is equal to 5 और हमने PA फाइंड कर दिया। देखो अब क्या ढूंढना है, AS। बराबर, तो चलो पहले PA PB इक्वल है और PA का वैल्यू 5 मिल गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंसीडर पॉइंट Q। ओके, अगर आप पॉइंट Q कंसीडर करते हैं तो टेल मी व्हाट कैन यू से अबाउट QB एंड QC? QB एंड QC के बारे में क्या बोल सकते हो? दे आर द टैंजेंट सेगमेंट्स, तो कैन वी से देयर लेंथ्स आर इक्वल। सो BQ CQ को इक्वल होगा, इसे बोल सकते हैं। सो वी कैन से BQ CQ इक्वल है, एंड सिंस BQ का वैल्यू 3 था, CQ का वैल्यू भी 3 होगा, राइट? क्लियर? फर्दर कंसीडर पॉइंट R। नाउ इफ यू कंसीडर पॉइंट R, व्हाट कैन यू से अबाउट RC एंड RD? We can say RC and RD both are equal. Why both are equal? Because we know that tangent segments from an external point to circle are equal. So RD is equal to CR बोल सकते हैं। So we can write down that. But since दोनों का वैल्यू पता नहीं है, we are considering them to be X. RC का वैल्यू दिया नहीं है, RD का वैल्यू दिया नहीं है, तो इसके लिए हम दोनों का वैल्यू क्या कंसिडर करने वाले हैं, X। बराबर। Now वैसे ही consider point S now. Now if you consider point S students, what can we say about SA and SD? AS and SD both are equal. So we know that AS is equal to SD. बराबर। अच्छा, यहां पर भी दोनों का वैल्यू दिया नहीं है। Since दोनों का भी वैल्यू दिया नहीं है, we'll consider their value as Y. So AS is equal to SD is equal to Y. बराबर। अब इन चारों का कोई रीजन होना चाहिए, why all these tangent segments are equal, तो इसका रीजन होगा tangent segments theorem। अभी हमने थ्योरम सीखा है कि tangent segments from an external point to a circle are equal, तो ये tangent segments from an external point to circle are equal, इसलिए हमने इनको equal बोल दिया है। अंडरस्टूड? फाइन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। द सेकेंड लाइन, दीज फोर टेंजेंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम PQRS। सो हमें पता है कि ये क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, पैरेललोग्राम। एंड इफ यू रिमेंबर आई सेड पैरेललोग्राम का बात निकला है तो उसके प्रॉपर्टीज दिमाग में लाओ। सो वी नो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम रिलेटेड टू साइड्स, ऑफ कोर्स एंगल्स के बारे में बात नहीं करना है यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेगमेंट्स, तो साइड्स के बारे में बात करना है पैरेललोग्राम के। तो वी कैन से
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ना कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल बोल सकते हैं क्या? तो फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज अ डेफिनेशन, हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल सकते हैं। Now students, in parallelogram opposite sides are equal, बराबर है कि नहीं? तो first of all we need to mention that quadrilateral PQRS is a parallelogram। तो उसका पहला जोड़ी opposite side का equal बोलेंगे। तो पहला जोड़ी कोई भी दो ले सकते, कोई भी दो। चलो यहाँ पर PQ is equal to SR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PQ and SR लिया, तो we can say that PQ is equal to SR। Now if I ask a question to you, why PQ is equal to SR? तो इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पर वी हैव नॉट मेंशन बट डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन व्हाई दीस टू साइड्स आर इक्वल। रीजन शुड बी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, या ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसे रीजन मेंशन करना। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द रीजन, बराबर। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट PQ, ओके? PQ पर ध्यान देना। Now if you look at PQ, P से जब Q की तरफ जाते हैं तो बीच में कौन सा पॉइंट दिखता है? B। इसका मतलब PQ is made up of two segments, बराबर। Tell me which are the two segments? PB and BQ। So we can say PQ is nothing but PB plus BQ। तो what we have done, देखो PQ के नीचे हमने क्या लिखा? PB plus BQ। PQ के नीचे क्या लिखा? PB plus BQ, because PQ is made up of two segments, PB and BQ, बराबर, समझा? Is equal to, अब SR की जब बात करते हैं, SR is also made up of two segments, SD and DR, क्लियर है? So is equal to SD plus DR। तो SR के नीचे हमने लिखा SD plus DR। मतलब क्या किया हमने? PQ को स्प्लिट करके लिखा PB plus BQ एंड SR को भी स्प्लिट करके लिखा SD plus DR। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज रीजन लिखेंगे P dash B dash Q एंड S dash D dash R बिटवीननेस। यहां पर भी रीजन मेंशन करना, ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट वी हैव नॉट मेंशन, बट यहां से मेंशन करना। चलो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB? यस, वैल्यू ऑफ PB इज 5 प्लस BQ, वैल्यू ऑफ BQ इज 3 is equal to SD, वैल्यू ऑफ SD, देखो फिगर में SD का वैल्यू इज Y, प्लस DR, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DR? वैल्यू ऑफ DR इज X, बराबर। तो चलो 5 plus 3 कितना होता है? इफ यू ऐड 5 plus 3 is 8, so can we say X plus Y is equal to 8? This is our equation number 1, क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, हमने PQRS को पैरेललोग्राम बोला था, इसलिए वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल बोला, बट जरूरी है क्या ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स का दोनों जोड़ी इक्वल होता है, मतलब एक जोड़ी इक्वल है तो दूसरा जोड़ी दूसरा इक्वल है। मतलब PQ किसको इक्वल था? PQ SR को इक्वल था, तो वैसे ही PS किसको इक्वल होगा? QR को, वो भी तो बोल सकते हैं। सो PS इज इक्वल टू QR, बराबर। वैसे ही जैसे पहले इसमें किया, PS को अगर आप ध्यान से देखो तो PS इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स, बराबर, PA प्लस AS। सो PA एंड AS आर द टू सेगमेंट्स, स्प्लिट करके लिखा PS को। लुक एट QR नाउ, अगर आप QR को देखोगे तो QR इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स, QC एंड CR। तो वी हैव टू स्प्लिट QR एंड राइट एज QC plus CR। So we all know why PS is equal to QR, opposite sides of parallelogram are equal, and PS को split करके लिखा PA plus AS and QR को split करके लिखा QC plus CR। इसका रीजन होगा P dash A dash S, Q dash C dash R। Do not forget to write the reasons, it's a request। यहाँ पर space constraint करके लिखा नहीं है, but do not forget to write the reasons, right? What is the value for PA? PA का वैल्यू फिगर में दिखाई दे रहा है 5। AS, what is the value for AS? AS का वैल्यू फिगर में दिखाई दे रहा है Y, is equal to QC, QC का वैल्यू है 3 प्लस CR, CR का वैल्यू फिगर में देखो, CR का वैल्यू है X, बराबर।
नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास दो चॉइसेस है सॉल्व करने का। ये प्लस एक्स को उधर शिफ्ट करो तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी ऑप्शन है, या प्लस वाई को इधर लेकर आओ तो माइनस वाई हो जाएगा। बट हमें पता है लीनियर इक्वेशन में पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, बराबर है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये प्लस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। देखो प्लस वाई को इधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस वाई हो जाएगा, एंड इस प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर ओके एक्स माइनस वाई, ये समझा एक्स माइनस वाई कैसी हुआ, प्लस वाई उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस वाई हुआ, तो एक्स माइनस वाई, एंड ये प्लस 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो माइनस 3, मतलब 5 minus 3. So x minus y is 5 minus 3, so therefore x minus y is equal to 2, equation number 2. So students remember linear equation with two variables, algebra याद है ना? देखो पहला इक्वेशन क्या मिला है, x plus y is equal to 8, और दूसरा इक्वेशन क्या मिला, x minus y is equal to 2, जिसमें आप देखो वेरिएबल y का कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट सेम है, और साइन देखो प्लस माइनस है, इधर y का साइन है प्लस और इधर y का साइन है माइनस। When variables have same coefficient but opposite sign, when variables have same coefficient and opposite sign, we add both the equations. So adding equation 1 and 2. So chalo, what is the first equation? X plus y is equal to 8. And what is the second equation? X minus y is equal to 2. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं, मतलब साइन रिमेन्स एज इट इज, तो प्लस वाई माइनस वाई विल गेट कैंसल्ड, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 का वैल्यू 10, सो 2x इज इक्वल टू 10, बराबर। नाउ स्टूडेंट्स 2 इज मल्टीप्लाइड विथ x, 2 is multiplied with x. If 2 goes on the other side, it would be divided. 2 अगर दूसरे साइड में चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो we can say x is equal to 10 divided by 2, and 10 divided by 2 मतलब 5, so x is equal to 5. तो हमें किसका वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला मतलब किसका वैल्यू मिला, CR का वैल्यू मिला और DR का वैल्यू मिला, बट हमें किसका वैल्यू चाहिए, AS का, एंड AS का वैल्यू चाहिए मतलब किसका वैल्यू चाहिए, Y का वैल्यू चाहिए। तो X का वैल्यू मिला ठीक है, बट हमें X के वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, Y का वैल्यू ढूंढना है, बराबर। चलो अभी ध्यान देना Y का वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। देखो पहले इक्वेशन में X का वैल्यू पता है ना, हमको मिल गया है, तो पहले इक्वेशन में X का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Y का वैल्यू मिल सकता है, राइट। So in the next step what we can do is x का वैल्यू तो मिल गया, so substituting value of x in equation 1. अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछते सर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो चलेगा क्या, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिंपल इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 1 जिसमें माइनस का साइन ही नहीं है, देखो ओके। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन 1, x plus y is equal to 8। अब इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 5, पता है ना सबको। So let us substitute the value of x as 5. So x के नीचे लिखोगे 5 plus y is equal to 8. अब ये 5 जो प्लस है वो उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, 5 का साइन क्या है प्लस, उधर चला गया तो माइनस, so we can say therefore y is equal to 8 minus 5, therefore y is equal to 3. अच्छा y का वैल्यू 3 मिल गया, y का वैल्यू 3 मिल गया मतलब किसका वैल्यू मिला, AS का वैल्यू मिला, y का वैल्यू 3 मिला मतलब AS का वैल्यू मिला, बराबर है। So now we can find out PS. We all know PS is made up of two segments, PA and AS. क्योंकि हमें PS फाइंड करना है, क्वेश्चन में वही पूछा था, फाइंड PS. तो we know that PS is made up of two segments. So can we write PS is equal to PA plus AS. रीजन क्या लिखोगे, P dash A dash S, बराबर। So do not forget to write the reason here, P dash A dash S. चलो PS as it is equal to PA, PA का वैल्यू 5 प्लस AS, AS का वैल्यू
Yes, we all know AS का वैल्यू y and y का वैल्यू 3. AS का वैल्यू क्या था y और y का वैल्यू कितना मिला हमको 3. सो AS के नीचे लिखा 3. नाउ टोटल करो 5 + 3 कितना हुआ 8. सो PS इज इक्वल टू 8 यूनिट्स बोल सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड PS and we have found out PS. Understood? So students, this was one of the most important sums of solved example. That's why we have taken, and it was based on tangent segments from an external point to circular equal. Okay, ये सम बहुत important. इसी टाइप का एक सम हम एक्सरसाइज में मतलब अपने सिलेबस में है, इसी टाइप का सेम. I'll remind you of that. So please make sure that you practice this sum very well, so that वो sum जब आएगा you are easily understanding that sum. Okay, so thank you students, thank you. God bless all of you all. आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है. So this was all about lecture number 3. Students, जैसे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं, I would like to tell all of you all, since we are covering all the lectures in a systematic manner, please do subscribe to my channel so that whenever I upload my lecture, you are immediately notified about that. Okay, and do not forget to press the bell icon, right? And please, it's a request, share this videos to as many students as possible so that they can all benefit from these lectures. Okay, till then, take care, love you all, bye bye.